Good morning, student. Today we will discuss chapter 11, thermal properties of matter. Matter, we have three categories of matter. One is the solid, liquid and gas. When we given heat to the matter, either it is solid, either it is liquid or gas. What is the effect on solid, liquid or gas due to heat? We discuss about heat in today's class. First, what is the heat? Heat, it is form of energy. Energy का form है which gives us sensation of warmth. देखो वार्म का मतलब क्या हो गया? हीट, गर्मी. हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें गर्मी के बारे में बताएगा. मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो उसको हीट बोलते हैं. इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. Suppose we touch the two substances at different temperature by our hand. One substance has higher temperature, other substance has lower temperature. Then sensory nerves give message to our brain कि one substance is heat and other substance is cool. Sensory nerves. So heat basically we have two unit heat. One is joule, other is calorie. And 1 calorie 4.186 joule. या 1 calorie 4.2 joule. 1 calorie में 4.2 joule होगा. 4.186 को राउंड ऑफ कर दिया हमने. We have two unit, joule and calorie. What is the calorie? Calorie, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance. Unit mass of substance from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. So what is the 14.5 and 15.5? 14.5 and 15.5. Minimum temperature required to heat the body up to 14.5. Before 14.5, molecule gain the energy, gain the heat, and after gaining the heat, their kinetic energy increase. They are in the random motion, and up to the 15.5, the energy gained by molecule, that is called 1 calorie. कैलोरी आपको और काम मिलेगा जब आप कोई चिप्स, चॉकलेट, कोई भी अगर आप पैकेट लोगे उसके पैकेट के ऊपर जरूर आप देखा कितनी कैलोरी की एनर्जी हमें मिल रही है. तो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्म है जो आपको आप गर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में बताएगी. अब नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर. टेम्परेचर it is degree of hotness and coldness of a body. देखो अगर दो बॉडी है उनके पास डिफरेंट हीट है, एक की ज़्यादा है एक की कम है, तो ज़्यादा वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम वाले का टेम्परेचर कम होगा. तो जो डिफरेंस होगा या जो डिग्री होगी, डिफरेंस ये बताएगा कि पहले बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है. डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा मतलब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूसरे वाले का कम होगा. टेम्परेचर एंड हीट बोथ आर रिलेटेड टर्म्स.
we will discuss in this chapter. Measurement of temperature. How we measure the temperature? तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमारे पास 4 स्केल, वी हैव 4 स्केल measurement of temperature. Measurement of temperature, 4 scale, मतलब we have 4 scales by which we measure the temperature. We have 4 scale by which we measure the temperature. So scales, देखो, we have 4 scale. First is the Celsius. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, and Reaumur. We have 4 scale. One is the Celsius, Fahrenheit, Kelvin, and Reaumur. On the basis of water के बेसिस पर इन 4 का डिटर्मिनेशन किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. फर्स्ट इज द सेल्सियस. लिसन, सपोज दिस इज द सेल्सियस स्केल. वी हैव नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन. Upper is the boiling point, lower is the melting point. Melting point and boiling point. Melting point 0 degree Celsius, boiling point 100 degree Celsius of water. In 0 to 100 we have 100 parts. 100 parts. This is the Celsius scale. In the Fahrenheit numbers are different. Boiling point 202 degree Fahrenheit. This is the 32 Fahrenheit. Division is 180 part. 180 part divided. 180 part. Division is 180 part. Third is the Kelvin. Boiling point, melting point 273, 373, and division in 100 part. Last is the Reaumur. 0 degree Reaumur, 80 degree Reaumur, 80 part. 80 part. We have 4 scales. One is the Celsius, Fahrenheit, Kelvin, and Reaumur. 4 scale. Determination या difference distinguish between melting point and boiling point of water. In case of Celsius, melting point is 0 degree Celsius, boiling point 100 degree Celsius, division is 100 part. Fahrenheit 32 degree Fahrenheit, 212 degree Fahrenheit, division 180 part. Kelvin, boiling point 273 and melting point 273 and boiling point 373. And fourth is the Reaumur, 0 degree and 80 degree. So we have 4 scale by which we can measure the temperature of any body. In our India, हमारे इंडिया में 2 scales, 3 scales used in the large scale. लार्ज पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हम जहाँ यूज करते हैं सेल्सियस, फारेनहाइट या केल्विन. तो and in foreign country we also use the Reaumur.
तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हाउ दीज स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या रिलेशन है इनके बीच में, वो रिलेशन आपको बताने हैं। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन स्केल्स। देखो आप फार्मूला बताया जाएगा, ध्यान देना। व्हाट इज फार्मूला? फार्मूला इज सिंबल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई डिवीजन। सपोज सिंबल C लोअर पॉइंट 0 डिवीजन 100, symbol is F lower point 32 division 180, symbol is K lower point 273 division is 100, and symbol is R lower point 0 division is 80. Symbol minus lower point division, this is formula, कोई बुक का फार्मूला नहीं है, आपको बताएगा स्पेशल फार्मूला, बुक में आपको नहीं मिलेगा। सिंबल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय डिवीजन, सिंबल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय डिवीजन, सिंबल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय डिवीजन, सिंबल माइनस लोअर पॉइंट बाय डिवीजन। सिंबल इज C लोअर पॉइंट इज 0 डिफरेंस 100 पार्ट, सिंबल F लोअर पॉइंट 32 डिफरेंस 180, symbol is K for Kelvin lower point 273 division 100, symbol is R lower point 0 division is 80. Suppose we have to find the relation between C and F. You read in the 6th class, C by 100 equal to F minus 32 by 180, कट कर देते हैं 5 and 9, our relation is C by 5 F minus 32 by 9. This is the relation between Celsius and Fahrenheit. And at very most important question, at 40 degrees Celsius minus 40 degrees Celsius, at temperature minus 40 degrees Celsius, both scales are same temperature, दोनों स्केल के पास सेम टेम्परेचर होगा जब आप पहुंचोगे माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर। कभी कभी आप क्विज में जाते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर एट विच सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल गिव्स सेम हीट, तो टेम्परेचर आपको मिल गया माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट। माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट बोथ स्केल्स गिव सेम हीट। अच्छा आप आगे देखो, हमने आपको बताया कि टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करेंगे। हमारे पास 4 स्केल्स हैं, स्केल के नाम की बात हुई, देखो वाटर के बेसिस पर डिटर्मिनेशन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। After determination, we find the relation between both scales, Celsius and Fahrenheit, Kelvin and Newton. We have 4 formula. When we find the relation by taking 2 का लेकर के हम रिलेशन निकालेंगे। लास्ट में देखो हमने फाइंड किया है सेल्सियस एंड फारेनहाइट। सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन मिला C by 5 F minus 32 by 9, and we have a temperature at which Celsius and Fahrenheit both scales are equal, minus 40 degree पर। Our next relation between C and K, relation between C and K, देखा आपने फार्मूला C by 100 equal to K minus 273 by 100,
100 से 100 कटिंग, C इक्वल टू K माइनस 273, K इक्वल टू C प्लस 273, C इक्वल टू K प्लस 273। जिस पे स्केल का हमें रिलेशन निकालना है, हम दो को लेकर के रिलेशन निकाल सकते हैं। दीज टू रिलेशन आर स्टैंडर्ड रिलेशन, जो हमेशा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इनके ज़्यादा फेवरेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो वन इज K इक्वल टू C प्लस 273 एंड अदर इज द C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो यहाँ तक देखो हमने सीखा कि हीट क्या है। हीट बताएगा आपको कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्म है जो हमें गर्मी का एक्सपीरियंस करवाएगा। फिर हमने देखा कि हीट के हमारे पास दो यूनिट थी। पहली यूनिट थी हमारी केल्विन और एक यूनिट केल्विन नहीं, पहले हमारे पास हमारे पास हीट थी जूल की, जूल, और दूसरा जो था देखो कैलोरी। 1 कैलोरी 4.186 जूल। फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर से पता चलेगा कि बॉडी आपकी कोल्ड में और हीट, मतलब बॉडी कोल्ड है या हॉट है, वो टेम्परेचर बताएगा। फिर हमने मेजरमेंट पढ़ा। टेम्परेचर के मेजरमेंट हमारे पास हैं। मेजरमेंट की 4 स्केल आई। 1 इज द सेल्सियस, अदर इज द फ़ारेनहाइट, थर्ड इज द केल्विन एंड फोर्थ पार्ट इज द र्यूमन। फिर हमने देखो रिलेशन पढ़ा है। और नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज द थर्मल एक्सपेंशन? एक्सपेंशन इन सॉलिड ड्यू टू heating the solid is called thermal expansion. Is called thermal expansion. Expansion in solid due to heating the solid. अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। दे आर इन द रैंडम मोशन, नॉट इन द रेगुलर मोशन, दे आर इन रैंडम मोशन। ड्यू टू द रैंडम मोशन मॉलिक्यूल आर इन द जिगजैग पाथ, जिगजैग पाथ में मूव करेंगे तो एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड ड्यू टू हीटिंग द सॉलिड इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। दिस थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स। थर्मल एक्सपेंशन 3 types. One is the linear expansion, other is the superficial expansion, superficial expansion, and third is the cubical expansion, cubical expansion. In case of linear expansion, length increase or decrease, superficial area increase or decrease, and cubical volume. Learn these 3 terms. One is the length, second is the area, and third is the volume. In first case, linear expansion, length में change जाएगा when you increase the temperature. In second case, change in the area. In third case, change in volume. तो first देखो, let us we discuss about the linear expansion. Linear means straight linear या length में change आएगा। तो first is the linear expansion. What is the linear expansion? Suppose you have linear expansion.
A rod of length है, temperature is T. If we increase the temperature by delta T, the change in length of rod is delta L. इनिशियल लेंथ L, टेम्परेचर T, टेम्परेचर हमने बढ़ाया डेल्टा T, लेंथ इसकी इंक्रीज कर गई, इंक्रीज करके कितना आ गई भाई डेल्टा L. द इंक्रीज इन लेंथ depends on the following factors. How many factors? We have two factors. One is the length and second is the rise in temperature. पहला फैक्टर जो लेंथ पर दिया, दूसरा उसके टेम्परेचर पर. ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों को कंबाइन कर दो. कंबाइन करके अगर इनको एक कांस्टेंट लगाते हैं अल्फा एंड डेल्टा टी. अल्फा एंड डेल्टा टी. अल्फा इज डेल्टा एल बाई एन डेल्टा टी. दिस इज द अल्फा. नेम ऑफ अल्फा इज constant is called coefficient of linear expansion. Listen, alpha is called coefficient of linear expansion. तो हम बात कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन की. हमने एक रोड लिया, आरओडी रोड, जिसकी लेंथ L है और टेम्परेचर T है. अगर हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, देखो लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया कब? जब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया. जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी लेंथ ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़ी. लेंथ उसकी इंक्रीज कितना हो गई? सपोज यू मेक द सेकंड डायग्राम. दिस इज द लेंथ एंड दिस इंक्रीज लेंथ डेल्टा L. दिस इज L. हियर टेम्परेचर T, हियर टेम्परेचर डेल्टा T. जब हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर तो डेल्टा T बन गया. अब जो ये लेंथ इंक्रीजिंग लेंथ है, ये डिपेंड कर रही है फैक्टर नंबर 1 है, फैक्टर नंबर 2. एक तो कितनी ओरिजिनल लेंथ थी उसी रेशियो में लेंथ बढ़ेगी, कितना ओरिजिनल टेम्परेचर था उसी रेशियो में आपकी लेंथ जो है इंक्रीज करेगी. अल्फा इज कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अल्फा इज कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अब देखो अगर अल्फा की यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? अल्फा की यूनिट क्या होगी? निकाल लेते हैं बात. सिंपल यूनिट है एकदम. फार्मूला ऑफ अल्फा इज डेल्टा L बाई L डेल्टा T. मीटर केल्विन कैंसिल हो गया, केल्विन -1 और देखो या तो केल्विन -1 और डिग्री सेल्सियस -1. डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन ऑफ अल्फा. इफ डेल्टा T इज 1 डिग्री सेल्सियस, L इज 1 मीटर, अल्फा इज डेल्टा L. देखो अगर हम टेम्परेचर को 1 रख दिए, लेंथ को हमने 1 रखा, तो जो अल्फा आया वो 1 इसके इक्वल हो जाएगा. अल्फा इज डेल्टा L. व्हाट इज द डिफिनेशन? द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन equal to change in length per unit original length per unit rise in temperature.
देखो पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इक्वल टू द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। पर यूनिट में 1 रखा हुआ है, इसलिए देखो यूनिट आपके पास हो गई केल्विन डिग्री सेल्सियस -1। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडी, हर बॉडी के लिए देखो अलग अलग रहेगा, अल्फा जो है सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो फर्स्ट हमने देख लिया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड जो देखते हैं, अल्फा की बात जैसी थी, अब देखो सेकंड की बात करेंगे। सेकंड का नाम था कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो देखो पॉइंट नंबर 2 डाल देते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या इसका एक नाम और है एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन देखो यहाँ क्या होगा, एरिया में चेंज होगा। कंसिडर ए स्क्वायर प्लेट हैविंग एरिया ए, देखो एरिया ए, टेम्परेचर T, if we increase temperature by delta T, the area increases by delta A। देखो एरिया में जो इंक्रीज है वो डेल्टा ए है। It depends on the 2 factors, वही सेम देखो 2 फैक्टर है। वन इज डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए, डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी, डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। The value of beta is डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। देखो बीटा इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यूनिट मीटर स्क्वायर केल्विन कैंसिल हो गया, पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस -1 सेम यूनिट है जो पीछे वाले की थी। जो यूनिट अल्फा की है वही यूनिट बीटा की है। वहाँ जो चेंज था वो लेंथ में था, यहाँ जो चेंज था वो देखो जो यहाँ का चेंज आपका है वो एरिया में है। ऐसे थर्ड में जो चेंज होगा वो वॉल्यूम में आएगा। तो पहला चेंज किसमें देखो लेंथ, सेकेंड चेंज एरिया, थर्ड चेंज वॉल्यूम। फर्स्ट चेंज लेंथ, सेकेंड एरिया एंड थर्ड चेंज इज चेंज इन वॉल्यूम।